of nutrition, that is autotrophic mode of nutrition, which is done by plants, and the process of obtaining food by the plants is known as photosynthesis. What do we call it? We call it photosynthesis. What is photosynthesis? Synthesis matlab to make. And how the plants are making by utilizing sunlight. How plants are making their food by using sunlight. Now see, this topic is really important. इस टॉपिक के ऊपर पक्का एक क्वेश्चन हर साल रहता है बोर्ड्स में, ठीक है? You know about the definition, you know about the reaction. This is not very new for the 10th graders क्योंकि पहले भी एक बार पढ़ा हुआ. But what new we are going to study, we'll find out in the next on the next screen. See, before moving ahead, we should be understanding what is photosynthesis. ये क्या है? एक प्रोसेस है. प्रोसेस है मतलब ये स्टेप्स में हो रहा होगा. कुछ स्टेप्स चल रहे होंगे. स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 3. क्यों? क्योंकि ये क्या है? एक प्रोसेस है. प्रोसेस कैसा प्रोसेस? जिसमें ग्रीन प्लांट्स क्या कर रहे हैं? दे आर मेकिंग देयर ओन फूड. फूड मतलब ग्लूकोज. सीधा बात. Food matlab glucose from the two raw materials. What are the two raw materials? Carbon dioxide and water. What are the two raw materials? Carbon dioxide and water by using sunlight energy in the presence of chlorophyll. So what is happening during the photosynthesis? It is a process by which the green plants make their own food by using the inorganic substances like carbon dioxide and water by utilizing what? Sunlight in the presence of chlorophyll. Is it possible in the absence of chlorophyll? No. What is the job of chlorophyll during photosynthesis? Yes, to trap the sunlight. What is the job of chlorophyll? To trap the sunlight. Now see everyone, what are the conditions which are required? What are the conditions which are required for the photosynthesis to take place? The very first condition is the presence of sunlight. Sunlight helps to carry out the metabolic reaction. Metabolic reaction मतलब जो plant जो food obtain करता है, food बनाता है, food किसकी form में बना रहा है? Glucose. और सारा का सारा फूड, क्योंकि ड्यूरिंग डे टाइम फोटोसिंथेसिस कॉन्टिन्यूसली होता चला जा रहा है, तो बहुत सारा ग्लूकोज बन रहा है. बट क्या प्लांट वो सारा ग्लूकोज सेम टाइम पे कंज्यूम कर लेता है? नो. सो द फूड हैज टू बी स्टोर्ड फॉर द लेटर पर्पसेस, नाइट के लिए, राइट? सो द स्टोर्ड फूड ऑफ द प्लांट इज नोन एज स्टार्च. दिस इज अ सिंपल कार्बोहाइड्रेट. ये क्या है? सिंपल कार्बोहाइड्रेट है. And starch is a complex carbohydrate. Starch क्या है? Complex carbohydrate. The immediate food which is prepared by the plants during the process of photosynthesis is glucose, right? And the food stored by the plant for later use is known as starch. Glucose क्या है? Simpler food. स्टार्च क्या है? कॉम्प्लेक्स फूड. कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट बोलो या कॉम्प्लेक्स फूड बोलो, बट ये दोनों ही क्या है? कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट. सॉरी, दोनों ही क्या है? कार्बोहाइड्रेट. इज दिस क्लियर? क्या ये बात क्लियर हो गई? नाउ सी, वी हैव अ रिएक्शन टू अंडरस्टैंड द फोटोसिंथेसिस वेरी वेल. द रिएक्शन says you are taking carbon dioxide and water. Carbon dioxide and water are considered to be the raw materials. Right? What is it? These are raw materials. The plant utilizes. And these raw materials are organic or inorganic? Inorganic. ये दोनों क्या है? Inorganic. These raw materials are inorganic. What do they use? Light energy. What is the source of light energy? Sun. What is the source of light energy? Sun. And what is there with the plants which traps that light energy? आप इस क्लोरोफिल को कैसे समझो? गैस स्टोव. गैस स्टोव में क्या है? गैस स्टोव ने क्या पकड़ रखा है? एनर्जी पकड़ रखी है, फ्यूल पकड़ रखा है. तो वो एनर्जी यहाँ पे क्या है? लाइट एनर्जी. और वो गैस स्टोव क्या है? क्लोरोफिल. खाना बन जाएगा विदाउट गैस स्टोव? कुक हो जाएगा? नहीं. तो यहाँ पे इस प्रोसेस में प्लांट्स क्या कर रहे हैं? अपना फूड कुक कर रहे हैं. किसकी हेल्प से कर रहे हैं?
लाइट एनर्जी, और लाइट एनर्जी को ट्रैप करने के लिए कौन है? क्लोरोफिल। लाइट एनर्जी को ट्रैप करने के लिए कौन है? क्लोरोफिल। नाउ सी, when the photosynthesis reaction takes place, what happens? When the photosynthesis reaction takes place, it forms a simpler carbohydrate, which is glucose, which is used by the plants, right? Some of the glucose is used by the plants and some get stored. तो जब वो स्टोर होता है तो वो कॉम्प्लेक्स हो जाता है, वो कौन कौन सा फॉर्म ले लेता है? स्टार्च का फॉर्म ले लेता है। ठीक है, किसका फॉर्म ले लेता है? स्टार्च का फॉर्म ले लेता है। एंड अलोंग विद द glucose, what is formed as a byproduct? ऑक्सीजन। क्या बन रहा है एज अ बाय प्रोडक्ट? ऑक्सीजन। अब ग्लूकोज की बात करते हो तो एक सिंपल फूड है, ये प्लांट को चाहिए, तो दिस इज बेनिफिशियल। ठीक है, क्या ऑक्सीजन प्लांट्स को चाहिए? नो। क्यों? प्लांट्स एस्पायर नहीं करेंगे? प्लांट्स को एनर्जी नहीं चाहिए? प्लांट्स को एनर्जी चाहिए या नहीं चाहिए? चाहिए, चाहिए। तो दिस इज ऑल्सो required by the plants. But then why do plant cell releases oxygen? Then why do plants releases oxygen? ये बताओ। प्लांट्स के अंदर दो प्रोसेसेस पैरेलली होती रहती है। वन इज फोटोसिंथेसिस एंड सेकेंड वन इज रेस्पिरेशन। क्योंकि रेस्पिरेशन तो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को चाहिए, चाहिए या नहीं चाहिए? रेस्पिरेशन किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को चाहिए टू ऑब्टेन द एनर्जी फ्रॉम द फूड। तो प्लांट्स जो फोटोसिंथेसिस जब प्लांट्स कर रहे हैं तो वो क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं एज अ बाय प्रोडक्ट? ऑक्सीजन। अब रेस्पिरेशन में क्या होता है याद करो, फूड ऑक्सीडाइज हो जाता है, फूड ऑक्सीडाइज हो जाता है और एटीपी बनते हैं और साथ में CO2 प्रोड्यूस होता है, साथ में CO2 प्रोड्यूस होता है। तो आप सोचो जरा, प्लांट्स के लिए ध्यान से सोचो, जो ये कार्बन डाइऑक्साइड रेस्पिरेशन के टाइम पे प्रोड्यूस हो रहा है, क्या वही कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे प्लांट यूटिलाइज कर सकते हैं? फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं? कर सकते हैं या नहीं कर सकते? सोचो, तुम्हारे सामने दो चीजें हो रही हैं, प्लांट्स दो चीजें कर रहे हैं, क्या क्या कर रहे हैं? फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं और रेस्पिरेशन कर रहे हैं। फोटोसिंथेसिस मेजरली थोड़ा सा नाइट में भी होता है, जिसको डार्क रिएक्शन बोलते हैं, ब्लैकमैन्स रिएक्शन बोलते हैं, उसको अलग से पढ़ेंगे। ठीक है, फोटोसिंथेसिस मेजरली कब होता है? डे टाइम। ठीक है, और रेस्पिरेशन कब हो रहा होता है? ड्यूरिंग डे एज वेल एज ड्यूरिंग नाइट। क्या ऐसा कोई टाइम है जब किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म को एनर्जी नहीं चाहिए? ऐसा तो कोई टाइम नहीं होता। तो रेस्पिरेशन डे में भी हो रहा होता है और रेस्पिरेशन नाइट में भी हो रहा होता है। बट फोटोसिंथेसिस कब हो रहा होता है? सिर्फ डे में। फोटोसिंथेसिस कब हो रहा होता है? सिर्फ डे में। तो अब फोटोसिंथेसिस के टाइम पर क्या प्रोड्यूस हो रहा है? बहुत सारा ऑक्सीजन। क्या प्रोड्यूस हो रहा है? बहुत सारा ऑक्सीजन। अब इन दोनों चीजों को समझने के लिए ये समझो कि जो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस है, rate of photosynthesis is much more than rate of respiration। मतलब जितनी स्पीड से प्लांट फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं वो बहुत ज्यादा है एज कंपेयर टू द रेट ऑफ रेस्पिरेशन। तो क्या चीज ज्यादा प्रोड्यूस होगी, ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड? ऑक्सीजन। मतलब अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इज मच 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 मोर देन अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। अब क्या करता है, प्लांट को रेस्पिरेशन के टाइम पे क्या चाहिए? ऑक्सीजन। और वो ऑक्सीजन प्लांट को किससे मिल जाती है? फोटोसिंथेसिस से। तो प्लांट अपनी, इसलिए तो इन्हें ऑटोट्रॉफ्स बोल रहे हैं कि ये अपनी नीड के लिए किसी और ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। तो जो ऑक्सीजन प्लांट्स को यहाँ पर चाहिए वो ऑक्सीजन वो प्लांट कहाँ से ले लेगा? अपने फोटोसिंथेसिस के बाय प्रोडक्ट से ले लेगा। बट ये ऑक्सीजन इतना सारा होता है, इतने अमाउंट में होता है कि ये यहाँ यूटिलाइज करने के बावजूद भी ये ऑक्सीजन बच जाता है। The oxygen remains there, but now this oxygen is not required. जो एक्स्ट्रा ऑक्सीजन है आफ्टर यूटिलाइजिंग इट फॉर रेस्पिरेशन, इज दिस ऑक्सीजन रिक्वायर्ड बाय द प्लांट्स? नो। तो जो लेफ्ट ओवर ऑक्सीजन होता है वो प्लांट के लिए क्या बन जाता है? वेस्ट बन जाता है। तो प्लांट उसको क्या करना स्टार्ट कर देते हैं? रिलीज करना स्टार्ट कर देते हैं बाय स्टोमैकल पोर्स।
स्टोमेटल पोर्स सबको पता है ना, स्टोमेटल पोर्स में गैसियस एक्सचेंज होता है। तो अब प्लांट्स ने जो ऑक्सीजन प्रोड्यूस किया वो बहुत सारा था। इसको समझो कि प्लांट्स इज होस्टिंग, राइट। प्लांट्स क्या कर रहे हैं, पार्टी दे रहे हैं, वो खुद भी यूज कर रहे हैं उस पार्टी में ऑक्सीजन को, और जो बाकी के ऑर्गेनिजम्स हैं उनके लिए भी वो ऑक्सीजन सप्लाई कर पा रहे हैं। ऐसा क्यों हो पा रहा है, क्योंकि जो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस है वो बहुत ज्यादा है एज कंपेयर टू रेट ऑफ रेस्पिरेशन। मतलब प्लांट्स बहुत स्पीड से क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं, राइट। बट रेस्पिरेशन उतनी स्पीड से नहीं होता। क्यों नहीं होता, ये भी सोचो, हर चीज को सोचो। क्यों रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस ज्यादा है, क्यों फोटोसिंथेसिस ज्यादा हो रहा है, क्यों रेस्पिरेशन कम हो रहा है, ऐसे सोचो। क्या प्लांट्स के पास मोबिलिटी है, मूवमेंट है, बट मोबिलिटी नहीं है। क्या प्लांट के एनर्जी नीड्स बाकी ऑर्गेनिज्म के एनर्जी नीड्स से मैच करती है, no. क्यों, क्योंकि प्लांट्स कैसे होते हैं, स्टेशनरी होते हैं। इसीलिए प्लांट की एनर्जी नीड्स क्या होती है, कम होती है। उनकी एनर्जी नीड्स कम होती है, इसी वजह से प्लांट्स क्या करते हैं, रेस्पिरेशन स्लोअर रेट पे करते हैं। वेयर एज जो फोटोसिंथेसिस होता है वो फास्टर रेट पर होता है। आई बात समझ में। तो फोटोसिंथेसिस बहुत जल्दी 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 हो रहा है। तो जितना ज्यादा फोटोसिंथेसिस हो रहा है उतना ज्यादा क्या प्रोड्यूस हो रहा है, ऑक्सीजन। उतना ज्यादा क्या प्रोड्यूस हो रहा है, ऑक्सीजन। अब वो ऑक्सीजन प्लांट खुद भी यूज करेगा अपने रेस्पिरेशन के लिए, और जो ऑक्सीजन बच जाएगा वो क्या करना स्टार्ट कर देगा, रिलीज करना स्टार्ट कर देगा इनटू द एक्सटर्नल सराउंडिंग्स फॉर द हेटेरोट्रॉप्स टू यूज। अंडरस्टूड। ये बात किस किस को समझ आ, बिकॉज दिस इज द कॉन्सेप्ट, दिस इज नॉट लर्निंग, दिस इज द कॉन्सेप्ट। पक्का सबको समझ में आ गई। ऑनलाइन स्टूडेंट्स, हैव यू अंडरस्टूड दिस थिंग? यस मैम। यस मैम। मैम पर नाइट टाइम के अंदर जब फोटोसिंथेसिस नहीं हो रहा होगा और रेस्पिरेशन हो रहा होगा तब क्या, तब भी स्टोमेटा से ऑक्सीजन रिलीज होगा? हाँ बिल्कुल नहीं, नाइट टाइम में ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज, इसीलिए कहते हैं देयर वर सेइंग्स ना कि यू शुड नॉट बी स्लीपिंग अंडर द पर्सन वाज लाइंग अंडर द ट्री, स्लीपिंग अंडर द ट्री एंड फाउंड डेड इन द मॉर्निंग। व्हाई? Because the plants start releasing carbon dioxide more during the night. सबसे ज्यादा ये पीपल ट्री का, क्योंकि पीपल ट्री में रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस और रेट ऑफ रेस्पिरेशन हाई। ठीक है। तो जब आप एक बड़े ट्री के नीचे होते हो तो ड्यूरिंग नाइट टाइम फोटोसिंथेसिस तो खत्म हो गया, खत्म नहीं होता, लाइट डार्क रिएक्शन हो रहा होता, बहुत माइन्यूट क्वांटिटी हो रहा। तो जब वो फोटोसिंथेसिस आपका रेट क्या हो गया ड्यूरिंग नाइट टाइम, हो नहीं रहा, आप मान के चलो नहीं हो, ठीक है। तो क्या हो रहा है, सिर्फ रेस्पिरेशन हो रहा है, और रेस्पिरेशन में क्या प्रोड्यूस होता है, कार्बन डाइऑक्साइड। ये जो प्लांट सेल होता है, डिफ्यूजन याद है, डिफ्यूजन याद है, डिफ्यूजन में क्या हो रहा था, मूवमेंट ऑफ गैसेस फ्रॉम रीजन ऑफ हाई कॉन्सेंट्रेशन टू रीजन ऑफ लो कॉन्सेंट्रेशन। अरे इधर, you have any doubt? Are you listening? No. Okay. So what I was telling is you have, मैं भूल गई इसको बोलते बोलते। Yes, we were talking about diffusion. Diffusion is the movement of gases from the region of high concentration to region of low concentration. अब हम दो region create करते हैं, ठीक है। We just check out the plant behavior during daytime and during नाइट टाइम। हम दो रीजन क्रिएट करते हैं। ड्यूरिंग डे टाइम क्या हो रहा है, फोटोसिंथेसिस इज मोर देन रेस्पिरेशन, मतलब अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इज मोर देन अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रहा है वो सारा का सारा फोटोसिंथेसिस में यूटिलाइज हो जा रहा है, और प्लांट्स को अलग से कोई कार्बन डाइऑक्साइड की नीड होती है। क्यों होती है प्लांट्स को अलग से, जो रेस्पिरेशन है उसका रेट कम है, समझो। इसके ऊपर ग्राफिकल क्वेश्चंस आते हैं, ग्राफिकल क्वेश्चन। जो रेस्पिरेशन है उसका रेट कम है, मतलब प्लांट्स क्या है, स्टेशनरी है, दे आर एट रेस्ट, तो उनकी जो एनर्जी नीड्स है वो क्या है, ज्यादा है या कम है, लेस है। लेस होने की वजह से रेट ऑफ रेस्पिरेशन क्या है, लेस है। तो कार्बन डाइऑक्साइड भी क्या प्रोड्यूस हो रहा है, कम प्रोड्यूस हो रहा है। तो अब वो कार्बन डाइऑक्साइड फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को सेटिस्फाई कर पाएगा, नहीं। क्यों, क्योंकि फोटोसिंथेसिस तो बहुत ज्यादा हो रहा है। तो अब जो एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड की नीड है वो प्लांट कहाँ से लेना स्टार्ट कर देगा, सराउंडिंग से। हम सब क्या रिलीज कर रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, और वो प्लांट्स को हेल्प कर रहा है किसमें, फोटोसिंथेसिस। दोनों चीज समझ रहे हो, जो ऑक्सीजन है वो किसमें है, एबंडेंस में,
ऑक्सीजन किस में है बेटा? एबंडेंस में है। और कार्बन डाइऑक्साइड किस में है? स्कैर्सिटी में है। क्यों बोल रही हूँ मैं स्कैर्सिटी में? क्योंकि प्लांट की सब चीजें कनेक्ट करो, प्लांट की एनर्जी नीड क्या है? कम। कम होने की वजह से रेट ऑफ रेस्पिरेशन भी क्या है? कम। जब एनर्जी नीड कम है तो रेट ऑफ रेस्पिरेशन भी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो रेट ऑफ रेस्पिरेशन कम होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड भी क्या प्रोड्यूस होगा? कम। अब वो जितना प्रोड्यूस हो रहा है वो प्लांट ने यूज कर लिया। किस लिए यूज कर लिया? बट वो सफिशिएंट था? वो सफिशिएंट नहीं था। ठीक है, इसीलिए हम क्या बोल रहे हैं? कार्बन डाइऑक्साइड की क्या है? स्कैर्सिटी है, कमी है। अब वो कमी प्लांट कहाँ से पूरी करेगा? सराउंडिंग से। सराउंडिंग्स में कौन है? हेट्रोट्रॉफ। सिर्फ ह्यूमन थोड़ी है, हेट्रोट्रॉफ सारे ऑर्गेनिजम्स हैं। वो क्या रिलीज कर रहे होते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। अब अपनी नीड पूरी करने के लिए प्लांट क्या लेना स्टार्ट कर देगा सराउंडिंग से? कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है। अब विद रिस्पेक्ट टू ऑक्सीजन पढ़ो। ऑक्सीजन क्या है? एबेंडेंस। ऑक्सीजन क्या है? एबेंडेंस। प्लांट बहुत स्पीड से फोटोसिंथेसिस करता है। अब स्पीड कब कम होती है? इस पे बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आगे आपको मिलेगा। देखो, अगर क्लाउडी डे है, लिसन टू माय क्वेश्चन केयरफुली। अगर क्लाउडी डे है, क्लाउडी डे मतलब इट इज द क्लाउड्स यूजुअली कवर अप द सनलाइट, यस और नो? तो वहां रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस ज्यादा होना चाहिए, कम कम। होना चाहिए? तो सनलाइट इंटरप्ट हो गई तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस क्या हो जाएगा? कम। ड्यूरिंग मॉनसून रिड्यूस। तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस, रेट सॉरी, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस किस पे डिपेंड करता है? किससे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? यस, वेदर। अमाउंट ऑफ सनलाइट बेटा किस पे डिपेंडेंट है? अमाउंट ऑफ सनलाइट। तो जितना अच्छा अमाउंट, जितना सनी डे होगा उतना ज्यादा फोटोसिंथेसिस हो रहा होगा, राइट? जितना सनलाइट कम होगी उतना रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस लोअर होगा। तो आपको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आती है, विल डू इट लेटर ऑन, जब मैं आपको अप्लाइड और एडवांस वर्जन में लेकर जाऊंगी। तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस की अगर हम बात करते हैं, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस किस पे डिपेंड करता है बेटा? अमाउंट ऑफ सनलाइट। तो क्लाउडी डे पे अमाउंट ऑफ सनलाइट कम है, अमाउंट ऑफ सनलाइट कम है तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस भी कम है। बट अगर सनलाइट अच्छा है, ब्राइट सनलाइट है, राइट, और सनलाइट का अमाउंट बहुत अच्छा है तो किसका रेट बढ़ जाएगा? फोटोसिंथेसिस बढ़ेगा तो ऑक्सीजन बढ़ जाएगा। और ऑक्सीजन प्लांट खुद भी यूज कर रहा है, उसके पास इतनी अबंडेंस में है ऑक्सीजन कि वो खुद तो यूज कर ही रहा है। किसके लिए यूज कर रहा है वो? रेस्पिरेट। और किसको दे रहा है? सारे हेटेरोट्रॉप्स को दे दो। किसको दे रहा है? सारे हेटेरोट्रॉप्स को दे रहा है। इज दिस क्लियर? क्या ये बात समझ में आ गई? श्योर। अब इस टॉपिक की माइंड मैपिंग आप सब खुद करेंगे, क्योंकि मैं आगे नहीं लेकर जाऊंगी। राइट द डेफिनेशन, आप खुद से लिखेंगे रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस एंड रेट ऑफ रेस्पिरेशन। जितने भी फैक्टर्स मैंने आपके साथ अभी डिस्कस किए हैं ये सब आपकी हैंडबुक में है, ठीक है? बट आप पढ़ने जा रहे हो, आपको हैंडबुक मिलेंगी 5 मार्च को, राइट? 5 मार्च आफ्टर होली विल बी रिज्यूमिंग योर क्लासेस आफ्टर होली, 5 मार्च को। एंड कल या परसों में हम लोग ऑनलाइन स्टूडेंट्स की भी डिस्पैच कर देंगे, ठीक है? सो 5 मार्च को आप लोगों को मिलेंगी सभी को। तो तब तक के लिए इट इज इम्पोर्टेंट कि जो आप सीख रहे हो उसको लिख कर लेकर जाओ। प्लीज राइट डाउन, प्लीज राइट डाउन एवरीबडी। ब्रेक चाहिए? ये ब्रेक ही तो है, ये ब्रेक नहीं है। कोई 10 मिनट्स का ब्रेक नहीं है। यू गॉट समथिंग टू ईट? तो फिर ब्रेक किस लिए चाहिए? बातें करने को, आराम करने को चाहिए, श्योर? बात नहीं करोगे, मैं यही खड़ी हूँ, लो 5 मिनट का ब्रेक। लिखने के बाद नहीं, लिख लेना, 5 मिनट का ब्रीदिंग ब्रेक ले लो, डोंट काम योर माइंड, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। कोई कुछ बोलेगा नहीं, मौन व्रत। ना ऑनलाइन स्टूडेंट्स ना ऑफलाइन स्टूडेंट्स, यस यू वांट टू यूज रेस्ट रूम, श्योरली यू कैन, बट कोई बोलेगा नहीं, कोई इधर उधर देखेगा नहीं, जस्ट रेस्ट योर माइंड, रेस्ट योर माइंड। क्योंकि आप लोग अपनी एनर्जी डिप्लीट करते हो इधर उधर की बातों में। रेस्ट योर माइंड, आई एम नॉट टीचिंग एनीथिंग, वी आर नॉट टॉकिंग, रेस्ट योर माइंड।
You may also head down, you may close your eyes, you may do whatever you want to, but you will not talk. You will not talk. शांत और सीधे बैठना सीखो. शांत और सीधे बैठना सीखो. Close your eyes if you want to. Balancing है. अभी आपने केमिस्ट्री नहीं पढ़ा ना, फर्स्ट क्लास यूजुअली 10th क्लास बैच में हमेशा केमिस्ट्री रहती है. तो बाय द टाइम दे रीच संडे दे मूव हियर, तो तब तक वो बैलेंसिंग सीख चुके होते हैं. इसे बैलेंसिंग बोलते हैं. डू यू रिमेम्बर, वेरी गुड क्वेश्चन, कि इसने पूछा कि यहाँ पे मैम 6 क्यों लिखा हुआ है? Why it is written 6 CO2, 6 H2O? Do you remember your law of conservation of mass जिसमें आपने पढ़ा था total mass of reactants is equal to total mass of product? ये कब पॉसिबल है? ये तब पॉसिबल है कि जितने भी एटम्स आपके रिएक्टेंट साइड पर होते हैं उतने ही एटम्स आपके कहाँ होने चाहिए? प्रोडक्ट साइड पर. कहाँ होने चाहिए? प्रोडक्ट. काउंट करके देखो, कार्बन कितने हैं यहाँ पे? 6. यहाँ पे कितने हैं? 6. हाइड्रोजन देखो, 6 into 2 12. यहाँ पे कितने हैं? 12. ऑक्सीजन देखो, 6 into 2 करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, 12. 12 plus 6 18. कितने ऑक्सीजन है रिएक्टेंट साइड पर? 18. और प्रोडक्ट साइड पे कितने हो गए? 6 और प्लस 12 विच इज 18. समझ में आया? तो ये बैलेंसिंग की जाती है. बैलेंसिंग इज टू सेटिस्फाई द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. तो अभी तो आप ऐसे ही कर लो, और आप केमिस्ट्री चैप्टर 1 कर लोगे तो तब तक आपको बैलेंसिंग खुद ब खुद करनी आ जाएगी. मैंने ये नहीं बोला था कि वेस्ट मटेरियल फ्रूट में कन्वर्ट होता है. मैंने बोला था कि फ्रूट्स और वेजिटेबल्स प्लांट के लिए उनका वेस्ट मटेरियल. क्यों? क्योंकि प्लांट उनको खुद से यूटिलाइज नहीं करते. तो वो जो स्टोर करके फ्यूचर का तो उनको नहीं नीड होती ना बेटा. जो वेस्ट क्या होता है? जो हम खुद से यूज नहीं कर रहे. तो फ्रूट है, जो जो फ्रूट, जैसे मैंगो आ रहा है मैंगो ट्री पे, गुआवा आ रहा है गुआवा ट्री पे, तो क्या प्लांट उसको खुद कंज्यूम करे जा रहा है? तो वो प्लांट के लिए क्या हो गया? वेस्ट हो गया. सारा खाली बैठे हुए हो. Have you written about rate of photosynthesis, rate of respiration? में पढ़ने का मन नहीं है क्या बिल्कुल भी? मैंने इतनी सारी एक्सप्लेनेशन दी है आपको. ड्यूरिंग डे टाइम अलग से लिखो, ड्यूरिंग नाइट टाइम अलग से लिखो. ये इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं. सिर्फ नकल मारने के लिए थोड़ी बोला आप लोगों को. ये जरूर लिखेंगे बेटा, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अमाउंट ऑफ सनलाइट. बहुत सारे एमसीक्यूज बनते हैं. क्लाउडी डे पर क्या हो जाता है? रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस ड्रॉप कर जाता है. रेनी डेज में रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस क्या हो जाते हैं? ड्रॉप कर जाते हैं. क्यों? क्योंकि अमाउंट ऑफ सनलाइट रिड्यूस हो जाता है. प्लीज राइट डाउन अबाउट दिस. डू नॉट मिस एनी पॉइंट विच योर टीचर इज एक्सप्लेनिंग यू. यू नेवर नो कि क्वेश्चन कहाँ से क्रिएट होगा. जब तक आपके पास मटेरियल नहीं होगा तब तक आप कैसे करेंगे? होमवर्क एक्सप्लेनेशन कहाँ है? कहाँ है एक्सप्लेनेशन? राइट इट इन वर्ड्स. एक्सप्लेन करो कि ऑक्सीजन क्यों डिफ्यूज हो रही है. लेट मी गिव यू क्वेश्चन. व्हाई प्लांट्स diffuses out oxygen during day and carbon dioxide during night. So, as a 3-marker question, write down everything which you have learned. प्लांट्स ड्यूरिंग डे टाइम ऑक्सीजन क्यों डिफ्यूज आउट करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग नाइट टाइम? एक्सप्लेन करो अच्छे से. कंपेयर द रेट ऑफ रेस्पिरेशन एंड रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस. कंपेयर द टू पैरामीटर्स. Write as much as you can.
राइट एज मच एज यू कैन, राइट फुल डिटेलिंग, एक एक बात लिखो जो समझी है। कुछ भूल गए हो, कनेक्ट नहीं कर पा रहे हो, दोबारा से पूछो, बट लिखना सीखो। नाइट वाला क्या? नाइट में क्या होता है? नो सनलाइट, नो सनलाइट तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस ड्रॉप्स ड्रास्टिकली। तो क्या हो जाएगा? अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन ऑल्सो ड्रॉप्स। तो प्लांट सेल किसमें रिच हो जाएंगे? हाई कॉन्सेंट्रेशन किसकी हो जाएगी? कार्बन डाइऑक्साइड की। तो yes, the carbon dioxide starts moving out of the, diffusing out of the plants. क्योंकि रेट ऑफ रेस्पिरेशन बढ़ गया ना, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस कम हो गया नाइट में, रेट ऑफ रेस्पिरेशन बढ़ गया, जिसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट इंक्रीज हो गया है। नाइट में बताओगे कोई सनलाइट नहीं है, ऑलमोस्ट नो सनलाइट, ठीक है, तो कुछ अमाउंट ऑफ सनलाइट जो ट्रैप्ड होती है क्लोरोफिल में, वही यूज होकर मिनिएचर अमाउंट ऑफ रिएक्शन होता है, फोटोसिंथेसिस। ठीक है, प्रॉपरली एक्सप्लेन करो, ड्यूरिंग डे ड्यूरिंग नाइट, एक एक बात लिखो, ये बहुत जरूरी है लिखना, नोट मेकिंग बहुत जरूरी है। फोटोसिंथेसिस डिपेंड करता है अमाउंट ऑफ सनलाइट, ठीक है, जितना ज्यादा सनलाइट होगा उतनी फास्टर फोटोसिंथेसिस होता है प्लांट। क्यों? क्योंकि प्लांट्स को क्या चाहिए होता है? ग्रीन प्लांट्स को सनलाइट चाहिए होती है टू कैरी आउट फोटोसिंथेसिस, बिल्कुल सिंपल सी बात है। अब इसी को जब एक्सप्लेन कर रहे हो तो लिख देना, ऑन अ क्लाउडी डे रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस ड्रॉप, ऑन अ रेनी डे रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस ड्रॉप्स। क्यों ड्रॉप करते हैं इन दोनों दिन में? क्योंकि अमाउंट ऑफ सनलाइट क्या होता है? कम होता है, अमाउंट ऑफ सनलाइट रिड्यूसेस, ड्यू टू विच द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस आल्सो रिड्यूसेस। एक्सक्यूज मी मैम। हाँ जी बेटा। मैम, ड्यूरिंग नाइट टाइम प्लांट्स ऑक्सीजन कंज्यूम करते हैं ना थोड़ी सी? थोड़ी सी नहीं, जितनी देर रिस्पायर करते हैं, दे कॉन्टिन्यूसली रिस्पायर, तो ऑक्सीजन कंज्यूम करते हैं, वो ऑक्सीजन कंज्यूम करते हैं। कुछ उनके पास अपनी होती है ड्यू टू फोटोसिंथेसिस, और कुछ वो सराउंडिंग से ले लेते हैं। बट नाइट टाइम में प्लांट सेल्स आर रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड, डे टाइम में प्लांट सेल्स आर रिच इन ऑक्सीजन। तो ड्यूरिंग डे जो इसका क्रक्स निकल के आता है, ड्यूरिंग डे O2 diffuses out, CO2 diffuses in. Conclusion: during night, O2 diffuses in and CO2 diffuses out. And why this is diffusing in and why this is diffusing out? Why this is diffusing out? Rate of photosynthesis is more during the day as compared to rate of respiration. और यहाँ पे क्या हो रहा है? Rate of photosynthesis is less during the day, during night as compared to rate of respiration. अब जैसे कुछ बच्चे बोल रहे हैं या मैं बता रही हूँ आपको कि नाइट टाइम पर भी फोटोसिंथेसिस होता है। जो नाइट टाइम पर फोटोसिंथेसिस होता है उसको हम क्या बोलते हैं? डार्क रिएक्शन, कनिका लिस्टेन, हार्टविक लिस्टेन। नाइट टाइम पे जो फोटोसिंथेसिस होता है उसको हम डार्क रिएक्शन बोलते हैं। अब ये डार्क रिएक्शन क्यों होता है? क्योंकि फोटोसिंथेसिस के टाइम पे क्लोरोफिल क्या कर रहा है? सनलाइट को ट्रैप करके रखता है। तो जो थोड़ी बहुत सनलाइट बच जाती है और ट्रैप्ड रह जाती है, वो कब काम में आ जाती है? नाइट टाइम में। बट फोटोसिंथेसिस होती है बट बहुत मिनिमल अमाउंट में। Rate of photosynthesis is much less during night as compared to rate of respiration. तो ये कहना गलत होता है कि रात में फोटोसिंथेसिस नहीं होगी। Even photosynthesis takes place during night. ये बात किस किस को क्लियर होगी? पक्का से ये बात समझ में आ गई? फोटोसिंथेसिस नाइट टाइम में क्यों हो पा रही है?
फोटोसिंथेसिस नाइट टाइम में क्यों हो पा रहा है? क्योंकि क्लोरोफिल है जो सनलाइट ट्रैप किया हुआ है, जो कुछ अमाउंट ऑफ सनलाइट यूटिलाइज नहीं होता, वो कब होता है? धीरे धीरे नाइट टाइम में होता है। तो ऐसे रिएक्शन को क्या बोला जाता है? डार्क रिएक्शन। ठीक है, डार्क रिएक्शन भी बोलते हैं और ब्लैकमैन्स रिएक्शन भी बोलते हैं। और जो फोटोसिंथेसिस ड्यूरिंग डे हो रही होती है उसको हम क्या बोलते हैं? लाइट रिएक्शन। और उसको हम हिल्स रिएक्शन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हिल्स रिएक्शन, HILL। ठीक है, और डार्क रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं? ब्लैक मैन। ये किसी बुक्स में नहीं मिलते, सिर्फ टीचर्स क्लास में बता। ये ICSE सिलेबस में है, बट कुछ स्कूल्स आपको डार्क रिएक्शन और लाइट रिएक्शन पढ़ाएंगे। जैसे DLF में पढ़ाया जाता है, विवेकानंद में पढ़ाया जाता है, लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन करके। बहुत डीपर नहीं होता, जितना मैंने आपको इंट्रोड्यूस करवाया है उतना ही होता। बट ये बहुत कम लोग बताते हैं कि लाइट रिएक्शन को हम हिल्स रिएक्शन भी बोलते हैं और डार्क रिएक्शन को हम ब्लैकमैन्स रिएक्शन भी बोलते हैं। Is this clear? क्या सबने ये सब चीजें लिख ली? Why have you mentioned why plants diffuse without oxygen? Have you mentioned कि क्योंकि डे टाइम में रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस हाई होता है। क्यों हाई होता है? क्योंकि अमाउंट ऑफ सनलाइट ज्यादा होती है, इसलिए रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस हाई होता है एज कंपेयर टू रेट ऑफ रेस्पिरेशन। तो प्लांट सेल्स किस में रिच हो जाते हैं? ऑक्सीजन में। तो हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन कहाँ होती है? विद इन द प्लांट सेल्स। तो मूवमेंट कहाँ होना शुरू हो जाती है? इनसाइड टू आउटसाइड। इसीलिए प्लांट्स क्या डिफ्यूज आउट करना स्टार्ट कर देते हैं? ऑक्सीजन। और स्कैर्सिटी किसकी रहती है? कार्बन डाइऑक्साइड की। तो वो कार्बन डाइऑक्साइड वो अपनी भी यूटिलाइज करते हैं और इज दिस क्लियर? आर वी क्लियर अबाउट दिस कॉन्सेप्ट? इस पे कोई क्वेश्चन आएगा कर लोगे? Now, this is a superly important concept. What are the 3 steps of photosynthesis? Photosynthetic reaction सभी बच्चों को पता होता है। Preparation of the food by green plants using sunlight by the use of 2 inorganic substances, which is carbon dioxide and water. ये सबको clear हो चुका है, सबको पता है। But how is it happening? हमने क्या बोला? Photosynthesis एक process है और process हमेशा किसमें होती है? Steps में होती है। So this process is taking place in 3 steps. अब वो 3 steps क्या है? Step number 1 is absorption of sunlight energy by chlorophyll. सबसे पहले क्या होता है? Please pen down. ये question बहुत repeat होता है। Explain photosynthesis and define its 3 steps. ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है। आप मान के चलो कि अगर ये टॉपिक आपका फर्स्ट पीरियोडिक में आ रहा है तो ये क्वेश्चन आपको मिलेगा। और आप सबको पता है, जो बच्चे पहले पढ़े हुए हैं, कि मैं कुछ ही क्वेश्चंस के लिए ऐसा बोलती हूँ जो 200% पेपर में मिलते हैं और वो आपको मिलते हैं। Right? Similarly, I'm telling for these 2 questions that 3 steps of photosynthesis. For the step number 1, what is the first step plant is doing? Absorption of sunlight energy by chlorophyll. सबसे पहले स्टेप में क्या हो रहा है? क्लोरोफिल क्या कर रहा है? सनलाइट एनर्जी को, लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब कर। दूसरा क्या होता है? आपको पता है कि ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी इज कन्वर्टेबल। Energy always transforms its form from one form to another. पढ़ा है लास्ट ईयर फिजिक्स में वर्क इन एनर्जी में कि एनर्जी ना क्रिएट की जा सकती है, ना डिस्ट्रॉय होती है, सिर्फ एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज कर जाती है। तो प्लांट्स ने कौन सी एनर्जी रिसीव करी? सनलाइट एनर्जी। अब वो लाइट एनर्जी किसमें कन्वर्ट हो जाएगी? केमिकल एनर्जी। ठीक है, लाइट एनर्जी किसमें कन्वर्ट हो जाएगी? केमिकल एनर्जी में। अब लाइट एनर्जी केमिकल एनर्जी में कैसे कन्वर्ट हो रही है? मतलब कोई सब्सटेंस फॉर्म हो रहा है जो लाइट एनर्जी को यूज करके फॉर्म हुआ और वो सब्सटेंस फॉर्म हो रहा है। अब वो क्या होता है? ये सनलाइट क्या करती है? जैसे ही क्लोरोफिल सनलाइट को पकड़ेंगे, ये सनलाइट वाटर को ब्रेक कर देगी। सनलाइट क्या कर देगी? वाटर को ब्रेक कर देगी। किसमें? H2 और O2 में। किसमें ब्रेक कर देगी? H2 और O2 में। राइट? तो H2 और O2 क्या है? मॉलिक्यूल्स हैं। इसीलिए हम क्या बोलते हैं कि जो लाइट एनर्जी है किसमें चेंज हो गई? किसमें कन्वर्ट हो गई? केमिकल एनर्जी। किसमें कन्वर्ट हो गई? केमिकल एनर्जी।
स्टेप नंबर 1 में क्या था, क्लोरोफिल एब्जॉर्ब कर रहा है सारी की सारी सनलाइट को। स्टेप नंबर 2 में क्या हो रहा है, लाइट एनर्जी कन्वर्ट हो रही है केमिकल एनर्जी में। कैसे हो रही है कि लाइट एनर्जी आती है, इट फॉल्स ऑन द वाटर मॉलिक्यूल। लाइट एनर्जी किस पे फॉल कर रही है, वाटर मॉलिक्यूल में, और वो वाटर मॉलिक्यूल को ब्रेक कर दे रही है किसमें, हाइड्रोजन में और ऑक्सीजन में। किसमें ब्रेक कर दे रही है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। ठीक है, अब रिडक्शन, अब ये हो गया। अब क्या बन गया, हाइड्रोजन बन गया और ऑक्सीजन। ऑक्सीजन बाय प्रोडक्ट है, वो डिफ्यूज आउट करना स्टार्ट कर देगा। अब हाइड्रोजन का क्या करें, हाइड्रोजन का क्या होगा बेटा, हाइड्रोजन क्या करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड को रिड्यूस करना स्टार्ट, रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बाय हाइड्रोजन। ये क्या करेगा, उसको रिड्यूस करेगा और क्या बनाना शुरू कर देगा, कार्बोहाइड्रेट। कौन सा कार्बोहाइड्रेट फॉर्म होता है, C6H12O6, ग्लूकोज बन जाता है, ग्लूकोज बन जाता है। कैसे बना ग्लूकोज, कैसे बना, सबसे पहले लाइट एनर्जी ट्रैप हुई, सारे स्टेप समझो। सबसे पहले लाइट एनर्जी एब्जॉर्ब हुई, ट्रैप किया किसने, क्लोरोफिल ने। अब वो लाइट एनर्जी एंटर कर चुकी है प्लांट सेल के अंदर। अब वो लाइट एनर्जी किसमें कन्वर्ट होते जा रही है, एनर्जी में। कैसे कन्वर्ट हो रही है, क्योंकि लाइट वाटर, प्लांट्स में वाटर रहता है, वो लाइट एनर्जी किसको जाके हिट करेगी, वाटर मॉलिक्यूल। और वाटर मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, स्प्लिट हो जाएगा। किसमें स्प्लिट हो जाएगा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। किसमें स्प्लिट हो जाएगा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। ऑक्सीजन वही रहेगी और डिफ्यूज आउट होती जाएगी। और हाइड्रोजन क्या कर रहा है, दूसरा रॉ मटेरियल क्या था, एक रॉ मटेरियल तो वाटर था, फोटोसिंथेसिस के दो रॉ मटेरियल थे, कौन कौन से थे, यस, कार्बन, वाटर। तो वाटर के ऊपर सबसे पहले एक्शन हो गया, किसने एक्ट किया वाटर के ऊपर, लाइट एनर्जी। और लाइट एनर्जी ने वाटर को स्प्लिट कर दिया किसमें, H2 और O2 ने। O2 क्या हो जाएगा, प्लांट डिफ्यूज आउट कर देगा। और हाइड्रोजन क्या करने वाला है, इसको हिट करेगा, इसको हिट करेगा और इसको क्या कर देगा, रिड्यूस कर देगा। दो वर्ड है, वाटर की क्या हो रही है, स्प्लिटिंग, वाटर की क्या हो रही है, स्प्लिटिंग। और कार्बन डाइऑक्साइड का क्या हो रहा है, रिडक्शन। कार्बन डाइऑक्साइड का क्या हो रहा है, रिडक्शन। अब कार्बन डाइऑक्साइड रिड्यूस करके क्या बनाना शुरू कर देगी, कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट कौन से कार्बोहाइड्रेट बनेगा, यस, ग्लूकोज बन जाएगा। और वो ग्लूकोज कैसे बना, केमिकल एनर्जी। और वो केमिकल एनर्जी किसको रिप्रेजेंट कर रही है, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल को। वो केमिकल एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रही है, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। हाँ, मुझे बताइए किस किस को समझ में आ गया, पक्का, ऑनलाइन स्टूडेंट्स, परियुल नहीं समझ में आया, एक तो बोल नहीं रहे बेटा, मतलब मैं कोई वो कर रही हूँ क्या, मैं वॉचिंग अ मूवी एंड आई एम लुकिंग फॉर रिएक्शंस। वी शुड रिस्पेक्ट टाइम। जल्दी से बोलो, नहीं समझ में आया, क्या नहीं समझ में आया, जल्दी से आंसर करो, मुझे क्या, मैम मुझे थर्ड वाला पॉइंट समझ नहीं आया। थर्ड वाला पॉइंट समझ नहीं आया, गुड। थर्ड वाला पॉइंट में रिडक्शन हो रही है बेटा। रिडक्शन का मतलब क्या होता है, रिड्यूस कर देना, उससे आपका ऑक्सीजन मॉलिक्यूल ले लेना। ठीक है, रिडक्शन क्या होता है, टेकिंग अवे ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। क्या था वो, कार्बन डाइऑक्साइड था, उससे ऑक्सीजन मॉलिक्यूल किसने लिया, हाइड्रोजन ने लिया, और उसका क्या बना दिया, एक और कंपाउंड बना दिया, विच इज C6H12O6। ठीक है, विच इज कार्बोहाइड्रेट, विच इज सिंपलर कार्बोहाइड्रेट। पहले स्टेप में क्या है, एब्जॉर्प्शन, दूसरे में क्या है, कन्वर्जन, तीसरे में क्या है, रिडक्शन। पहले स्टेप में क्या है, एब्जॉर्प्शन, दूसरे में क्या है, कन्वर्जन, तीसरे में क्या है, reduction। कोई recap लेते हैं, फटाफट से लेंगे। ठीक है, 3 स्टेप्स ऑफ फोटोसिंथेसिस है। पहले में एब्जॉर्प्शन हुआ, एब्जॉर्प्शन किसका हुआ, सनलाइट। ठीक है, सनलाइट को किसने एब्जॉर्ब किया, अब वो सनलाइट जाके किसको हिट करेगी, वाटर मॉलिक्यूल को हिट करेगी, और वाटर मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, तो वो वाटर मॉलिक्यूल स्प्लिट हो जाएगा, तो हाइड्रोजन क्या फॉर्म कर रहा है, केमिकल एनर्जी। वो केमिकल एनर्जी किस पे एक्ट करेगी, कार्बन डाइऑक्साइड पर। और कार्बन डाइऑक्साइड को रिड्यूस कर देगी, रिड्यूस करके क्या बना देगी, सिंपल, अंडरस्टूड, अंडरस्टूड, क्लियर। इस स्टेप भूलोगे तो नहीं। स्टेप नंबर 1, एब्जॉर्प्शन ऑफ डैश। अब तुम लोग चुप रहोगे, ये लोग बोलेंगे। अनम्यूट करो सारे के सारे, अनम्यूट करो।
And speak along. What is step number 1? Absorption. Absorption of sunlight. Yes, sunlight किस absorb कर कौन कर रहा है sunlight को absorb? Chlorophyll. Step Chlorophyll. 2. Conversion of light energy. Conversion of light energy into chemical energy. Conversion के टाइम पे क्या हो रहा है? Light energy water molecule किस में split हो जा रहा है? H2 and O2. H2. Two and O2. राइट अब हाइड्रोजन क्या कर रहा है? केमिकल एनर्जी फॉर्म कर रहा है और केमिकल एनर्जी क्या कर रही है? रिड्यूस कर रही है. किसको रिड्यूस कर रही है? CO2. और रिडक्शन के बाद क्या बन रहा है? C6H12O6. सिर्फ सिंपल कार्बोहाइड्रेट. Glucose. अंडरस्टूड. लिखो, ऊपर नहीं देखोगे, लिखो 3 steps of photosynthesis. देखो ऊपर कोई बच्चा नहीं देखेगा. No one will look at screen. No one will look at smart board. लिखो जल्दी से. This is a non-negotiable topic. You cannot ignore this at all. ये सभी बच्चों को 3 steps याद होने चाहिए. एब्जॉर्प्शन ऑफ स्टेप्स याद कर बेटा. एब्जॉर्प्शन, कन्वर्जन, रिडक्शन, है ना. जब स्टेप के हेडर्स याद रहेंगे तो स्टेप्स अपने आप लिखोगे. स्टेप नंबर 1 टॉक्स अबाउट एब्जॉर्प्शन, स्टेप नंबर 2 टॉक्स अबाउट कन्वर्जन, स्टेप नंबर 3 टॉक्स अबाउट रिडक्शन. और ये एज इट इज लिखने होते हैं, नो इफ एंड बट. एब्जॉर्प्शन, कन्वर्जन, रिडक्शन. डे 2 प्रिपरेशन के लिए टाइम नहीं होता. जो प्रिपेयर करना है डे 1 से करना है. मेक श्योर यू आर प्रिपेयरिंग ईच एंड एवरीथिंग. और आज का दिन यूटिलाइज करके जितने भी हम स्लाइड्स कवर कर चुके हैं, आई विल बी शेयरिंग द बोर्ड, क्योंकि अभी हैंडबुक्स नहीं है और इसमें इनफ कंटेंट है टू प्रिपेयर. तो इसके साथ आप प्रिपरेशन के साथ आएंगे. आप 6 मार्च को 30 मिनट्स का मैं आपका एक टेस्ट लूंगी आफ्टर टेकिंग योर केमिस्ट्री क्लास. ठीक है, आपकी केमिस्ट्री क्लास होगी 6 मार्च को. दैट्स फ्राइडे. 5th इज थर्सडे ना. 5th मार्च इज थर्सडे. तो उस दिन मैथ्स का रियल नंबर स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग. जो बच्चे एब्सेंट है प्लीज मेक श्योर अब छुट्टी मत कर लेना. अब छुट्टी मत कर लेना. Even tell to Ojas and Shreyansh also. Don't miss classes unnecessarily. Shall we move ahead? Shall we move ahead? Next topic is equally important. बहुत lengthy question नहीं आता. Sometimes they ask you to write down the activity. अभी हमने क्या किया? Everyone pay attention. Everyone pay attention. Pen down. Calm your mind. Listen to me. Focus here. Now, we are going to do certain experiments in which we will be checking out what we were learning previously. अभी हमने फोटोसिंथेसिस पढ़ा, खूब अच्छे से पढ़ा. हमने समझा कि फोटोसिंथेसिस के लिए क्या नेसेसरी है. कार्बन डाइऑक्साइड इज इम्पोर्टेंट, सनलाइट इज इम्पोर्टेंट, क्लोरोफिल इज इम्पोर्टेंट. ये सारी चीजें हमें चाहिए to carry out the photosynthesis. Now we are cross checking it by using the experiment, by doing certain experiments. हम ये चेक करेंगे कि कार्बन डाइऑक्साइड क्या जरूरी है या नहीं है, क्या क्लोरोफिल की एब्सेंस में फोटोसिंथेसिस हो सकता है या नहीं, क्योंकि सारी चीजें एक्सपेरिमेंट के थ्रू ही समझ आई होंगी ना, डिस्कवर हुई होंगी. तो वो एक्सपेरिमेंट क्या है, दैट वी आर गोइंग टू लर्न. सो वी विल बी डूइंग 3 एक्सपेरिमेंट्स. आफ्टर 3 एक्सपेरिमेंट्स आई विल बी क्लोजिंग द क्लास. ठीक है, हमारे पास 20-25 मिनट्स है. वो 30 मिनट्स में भी जा सकते हैं, बट आई हैव टू फिनिश दिस टॉपिक क्योंकि स्टार्ट हो गया तो खत्म करना बहुत जरूरी है. नाउ लिसन, जब भी हम चेक करेंगे तो सबसे पहले हमें ये समझना चाहिए चेक करने के लिए कि प्लांट के पास स्टोर्ड फॉर्म ऑफ फूड होती है. प्लांट के पास स्टोर्ड फॉर्म ऑफ फूड होती है. कौन सी स्टोर्ड फॉर्म ऑफ फूड होती है? स्टार्च. पढ़ा था अभी हमने. प्लांट जो फूड स्टोर करता है वो स्टार्च की फॉर्म में स्टोर करता है. ठीक. Green plants make starch as their food. Yes, and starch
can give blue black color with iodine solution. तो ये सारे experiments, तीनों experiment to test carbon dioxide is necessary or not, experiment to test whether sunlight is necessary or not, experiment to test whether chlorophyll is necessary or not. तो उसके लिए हम blue black test करेंगे, that is iodine test. Iodine में क्या होता है? Starch shows turns its color to blue black with iodine. ठीक है, तो जब भी कोई सब्सटेंस का क्या मतलब है, हमारे पास कोई सब्सटेंस है उसमें स्टार्च है, जैसे राइस है, राइस में अगर आप आयोडीन सॉल्यूशन डालोगे ना, राइस आर रिच इन कार्बोहाइड्रेट्स, राइस आर रिच इन स्टार्च, मम्मा बॉईल करते हैं तो स्टार्च निकलता है, इसको मांड भी बोलते हैं हिंदी में, राइट? सो वो अगर आप उसमें ब्लू आयोडीन डालोगे तो कौन सा कलर आ जाएगा? ब्लू ब्लैक. तो अगर प्लांट फोटोसिंथेसिस कर रहा है तो प्लांट के पास स्टोर्ड फूड होना चाहिए, इस बात को समझो. अगर प्लांट फोटोसिंथेसिस कैरी आउट कर रहा है तो प्लांट के पास स्टोर्ड फूड होना चाहिए, मतलब प्लांट के पास क्या होना चाहिए? स्टार्च. और अगर स्टार्च है तो प्लांट आयोडीन सॉल्यूशन के साथ कौन से कलर टर्न कर जाएगा? ब्लू ब्लैक. अगर स्टार्च प्रेजेंट है तो ब्लू ब्लैक टर्न करेगा, अगर स्टार्च प्रेजेंट नहीं है तो ब्लू ब्लैक टर्न नहीं होगा. ये बात किस किस को समझ में आ गई? तो हमें ये सारी चीजें चेक करने के लिए हमें कौन सा टेस्ट करना है? आयोडीन टेस्ट करना है. और आयोडीन टेस्ट किसके ऊपर किया जाता है? स्टार्च के ऊपर किया जाता है. Because starch gives which color over the iodine solution? Blue black color. क्या ये बात समझ में आ गई? Everybody now understand. Plants जो होते हैं, अब इसको समझने के लिए हम ये चेक करेंगे कि प्लांट फोटोसिंथेसिस कर रहा है या नहीं. उसके लिए हम हमेशा हर प्लांट को डिस्टार्च करेंगे. क्या करेंगे हम? हर प्लांट को डिस्टार्च. ठीक है, क्योंकि हमें वो पार्ट भी प्लांट का चेक करना है जिसमें फोटोसिंथेसिस नहीं हो रही, और उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? प्लांट को डिस्टार्च करना पड़ेगा. डिस्टार्च मतलब उसमें से सारा का सारा स्टार्च रिमूव करना है. और स्टार्च क्या है? स्टोर्ड फूड. हमारी बॉडी में स्टोर्ड फूड क्या होता है? ग्लाइकोजन. इट इज अ कॉम्प्लेक्स. यस, हमारी बॉडी में क्या होता है? स्टोर्ड फूड ग्लाइकोजन. प्लांट्स की बॉडी में स्टोर्ड फूड क्या होता है? स्टार्च होता है. तो स्टार्च प्लांट, अब फोटोसिंथेसिस नहीं हो रही, आपने एक लीफ को एल्यूमिनियम फॉइल से कवर कर दिया. अब उसको कवर करने से आपको क्या मिलेगा? क्या उस लीफ तक सनलाइट पहुंच पाएगी? नहीं पहुंच पाएगी. जब उस लीफ तक सनलाइट नहीं पहुंच पाएगी तो क्या उस लीफ में फोटोसिंथेसिस हो रहा होगा? नहीं हो रहा होगा. लेकिन उस लीफ के पास क्या है? तो वो यूज करना शुरू करेगी, और यूज करते करते उसको 3 days लग जाएंगे टू यूज ऑल द स्टार्च. तो रफली इट इज एन एस्टिमेट, इट इज अ रफ एस्टिमेट कि एक प्लांट को 3 to 4 days लगते हैं अपना सारा स्टार्च और स्टोर्ड फूड को कंज्यूम करने के लिए. ये बात समझ में आ गई? क्या आपको ये तीनों पॉइंटर समझ में आ गए? सबसे पहले हम कोई भी चीज टेस्ट करने के लिए फोटोसिंथेसिस की, हम प्लांट में क्या चेक करते हैं? प्रेजेंस ऑफ स्टार्च. क्यों? क्योंकि स्टार्च क्या देता है? ब्लू ब्लैक कलर देता है आयोडीन सॉल्यूशन के साथ. और किसी भी चीज को चेक करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? प्लांट लीफ का कुछ पार्ट हमें डिस्टार्च करना पड़ेगा. और डिस्टार्चिंग कैसे होती है? बाय कीपिंग इट अवे फ्रॉम द सनलाइट. आप उसको डार्क में रख दो, जहाँ कोई सनलाइट नहीं पहुंचे, किसी रूम में रखो, उसको लॉक कर दो, वहां कोई सनलाइट नहीं है, तो क्या होना स्टार्ट हो जाएगा? डिस्टार्चिंग. क्या होना स्टार्ट हो जाएगा? डिस्टार्चिंग. डिस्टार्चिंग अप्रोक्सीमेटली कितने दिनों तक चलती है? 3 days तक, क्योंकि ये एस्टिमेट है कि प्लांट अपना सारा का सारा स्टार्च कितने डेज में कंज्यूम कर लेता है? 3 days में. ये बात क्लियर है? पक्का से ये बात क्लियर हो गई? नाउ लेट्स मूव अहेड. Now we will be doing the first experiment, which we'll be doing in the 4 steps. That is the experiment to show whether the sunlight is necessary or not. ठीक है, हम अभी तक क्या बोलते आ रहे थे? Plant is going to make its own food in the presence of sunlight. अब जरा चेक कर लें कि ये बात सही है या फिर गलत है. चेक कर लें. Right? Now everyone, online student, is this diagram clearly visible or shall I zoom it up? अच्छा, ठीक है. Now see, in step number 1, what are we doing, beta? We are taking one leaf of the plant and we are covering it with a aluminium foil. हम पूरी लीफ को नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ क्या कर रहे हैं? उसका एक पार्ट एल्यूमिनियम फॉइल से कवर कर रहे हैं. What is the purpose? To block the pathway of sunlight. What is the purpose to cover it with the aluminium foil? Because we don't want this part of the plant to get exposed to sunlight. The part which is not covered is getting exposed to sunlight.
मीन्स इफ अगर इस पार्ट में सनलाइट नहीं पहुंच रही तो ये वाला पार्ट क्या परफॉर्म नहीं करना चाहिए, फोटोसिंथेसिस नहीं होनी चाहिए इसमें, राइट। तो ये 3 दिन के अंदर अप्रोक्सीमेटली क्या हो जाएगा, डिस्चार्ज हो जाएगा, क्योंकि स्टार्च क्या दे देगा, ब्लू ब्लैक कलर दे देगा, तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि फोटोसिंथेसिस के लिए सनलाइट जरूरी है या नहीं है। तो आप 3 दिन तक इसको कवर करोगे और क्या कर दोगे, उसमें सनलाइट का पाथ क्या कर दोगे, ब्लॉक कर दोगे। मतलब द लेफ्ट पार्ट ऑफ द लीफ एंड द राइट पार्ट ऑफ द लीफ विल परफॉर्म photosynthesis, but the covered part of the leaf which is not exposed to sunlight will not perform photosynthesis. Now the second step we need to do is, अब iodine test में एक pigment interfere करता है, वो pigment क्या होता है, क्लोरोफिल। आयोडीन टेस्ट के टाइम पे क्योंकि वो कलर्ड पिगमेंट है, राइट, तो वो क्या करेगा, इंटरफेयर करेगा। इंटरफेयर करने का क्या मतलब है, वो आयोडीन टेस्ट को प्रॉपरली होने नहीं देगा, आयोडीन टेस्ट को वो प्रॉपरली नहीं होने देगा। तो हमें क्या करना होता है, वी हैव टू रिमूव द क्लोरोफिल। हमें क्या करना होता है, वी हैव टू रिमूव द क्लोरोफिल। अब क्लोरोफिल हम कैसे रिमूव करेंगे, क्लोरोफिल रिमूव करने का मेथड होता है डबल बॉयलर में। कैसे रिमूव करते हैं हम, डबल बॉयलर। क्योंकि क्लोरोफिल को हम कैसे रिमूव करेंगे, क्लोरोफिल कैसे रिमूव किया जा सकता है, बाय बॉइलिंग द लीफ इनटू द अल्कोहल। आपको क्या करना होता है, लीफ को अल्कोहल में बॉईल करना होता है। अब हर चीज का पर्पस है, हर चीज पे एमसीक्यू बन के आएगा, ठीक है। आप जब उसको बॉईल करोगे तो आप देख रहे हो डबल बॉयलर मेथड है। पहले आपने नीचे एक, सो सॉरी, पहले आपने नीचे क्या लिया, यू हैव टेकन अ बीकर कंटेनिंग वाटर, ठीक है, एंड अगेन यू हैव टेकन अ स्मॉल बीकर कंटेनिंग व्हाट, अल्कोहल। अल्कोहल इज हाईली इन्फ्लेमेबल। हाईली इन्फ्लेमेबल का क्या मतलब है, हाईली इन्फ्लेमेबल का क्या मतलब है, जो इजीली फायर कैच कर लेते हैं। तो आप अल्कोहल कंटेनिंग बीकर को डायरेक्टली बर्नर पर नहीं रख सकते हो। So that is why we use which method? Double boiler method. हम कौन सा मेथड यूज करते हैं बेटा, डबल बॉयलर मेथड। गॉट इट और नॉट, हम कौन सा मेथड यूज करते हैं, डबल बॉयलर मेथड। अब डबल बॉयलर मेथड क्या होता है, we do not put the beaker containing alcohol directly over the burner, right? So why we are not putting the beaker containing alcohol, it may catch fire because alcohol is highly inflammable. Alcohol कैसा होता है, highly inflammable. Are we getting this? क्या ये बात हमें समझ में आ रही है? अगर एक्सपेरिमेंट फर्स्ट समझ में आ गया ना, अगले दोनों फटाफट से हो जाए, क्योंकि इससे बेस डेवलप हो गया। पहला पार्ट हमने क्या किया, लीफ को डिस्चार्ज किया। कैसे कर रहे हैं हम लीफ को डिस्चार्ज, उसका एक पार्ट को एल्यूमिनियम फॉयल से कवर कर दे रहे हैं, ठीक है। और उसको हम क्या करेंगे, 3 डेज के बाद चेक करेंगे। 3 डेज के बाद जो पार्ट था, जो एल्यूमिनियम फॉयल से कवर था, वो क्या हो चुका होगा, डिस्चार्ज हो चुका होगा। अब उस लीफ को प्लग करके हम किस में बॉईल कर देंगे, अल्कोहल में बॉईल कर देंगे। क्यों कर रहे हैं हम अल्कोहल में बॉईल, क्यों जरूरी है क्लोरोफिल को रिमूव करना, विद द आयोडीन टेस्ट, ठीक है, हर चीज का पर्पस है। अल्कोहल क्यों अल्कोहल में बर्न किया जाता है, क्योंकि अल्कोहल क्या, सॉरी, अल्कोहल में बॉईल किया जाता है क्योंकि अल्कोहल क्या करता है, क्लोरोफिल रिमूव कर देता है, ठीक है। क्लोरोफिल रिमूव करना क्यों जरूरी था, आयोडीन टेस्ट को प्रॉपरली होने नहीं देता, उस टेस्ट में इंटरफेयर करता। क्या अल्कोहल कंटेनिंग बीकर को आप डायरेक्टली बर्न कर सकते हो, नो, यस, क्योंकि अल्कोहल हाईली इन्फ्लेमेबल है और वो फायर कैच कर लेता है, ठीक है। तो इसीलिए हम कौन सा मेथड यूज करते हैं, डबल बॉयलर मेथड यूज करते हैं। इज दिस क्लियर? अब हमने लीफ को बॉईल कर लिया और लीफ क्या हो गई, कलरलेस हो गई। क्यों हो गई लीफ कलरलेस, क्योंकि क्लोरोफिल चला गया। आपने अल्कोहल में बॉईल करके उसका सारा का सारा क्या कर दिया, अल्कोहल क्लोरोफिल रिमूव कर दिया। नाउ द लीफ इज डीकलराइज्ड, लीफ क्या है, डीकलराइज्ड। अगर तुम्हें याद हो तो हमने ऐसे इतने पार्ट में एल्यूमिनियम फॉइल कवर किया, तो दैट मींस इस पार्ट ने क्या नहीं करी, फोटोसिंथेसिस। तो अब आप इसके साथ लास्ट स्टेप में क्या करोगे, आयोडीन टेस्ट। अब आपने वो लीफ लिया, पेट्री डिश में लिया, एंड व्हाट यू हैव स्टार्टेड पोरिंग ओवर इट, आयोडीन सॉल्यूशन। व्हाट कैन यू सी,
The part of the leaf which was doing photosynthesis, the part of the leaf which was exposed to sunlight must be doing photosynthesis. तो उसके पास क्या था, स्टार्च था, तो वो क्या कवर हो, कैसे कलर हो गया उसका, ब्लू ब्लैक. बट द पार्ट ऑफ द लीफ which was not exposed to sunlight was not able to perform the photosynthesis. तो जब वो photosynthesis नहीं कर पा रहा है तो वहां पे क्या नहीं हुआ, स्टार्च नहीं हुआ. तो स्टार्च नहीं हुआ तो कैसा कलर चेंज नहीं आया, ब्लू ब्लैक कलर चेंज नहीं आया. तो व्हाट डज इट इंडिकेट, व्हाट डज इट कंक्लूड, ये क्या कंक्लूड करता है, यस ये क्या कंक्लूड करता है, यस सनलाइट इज नेसेसरी टू कैरी आउट फोटोसिंथेसिस. ये बात किस किस को समझ आती है, ये एक्सपेरिमेंट सबको समझ में आ गया, ऑनलाइन स्टूडेंट्स क्या ये एक्सपेरिमेंट हमें समझ में आ गया है. यस मैम. Yes, ma'am. Step number 1, destarching. Step number 2, decolorization. पर क्या नहीं हम, decolorization. Step number 3, iodine. ऐसे याद रखो. Step number 1 में आपने क्या किया, Step 1 is destarching. Step number 2, decolorization. Step number 3, iodine test. इसको क्या बोलते हैं जो मैं आपके साथ कर रही हूँ, माइंड मैपिंग. क्या बोलते हैं बेटा इसको, माइंड मैपिंग. जो भी आप पढ़ते हो अगर आप उसके की पॉइंट्स लास्ट में लिख के देखते हो तो यू विल नेवर फॉरगेट थिंग्स. आपने सिर्फ इतना भी लिख लिया ना पूरा एक्सपेरिमेंट करने के बाद कि मेरे को डिस्टार्च करना है, मुझे डीकलराइज करना है और मुझे आयोडीन टेस्ट करना है. डिस्टार्च कैसे करेंगे, बाय ब्लॉकिंग द वे ऑफ सनलाइट. डीकलराइज कैसे करेंगे, बाय बॉइलिंग अल्कोहल. अल्कोहल में हम डायरेक्टली बॉयल, अपने आप दिमाग चलेगा. अल्कोहल में हम बॉयल किस लिए करते हैं, टू डीकलराइज, टू रिमूव द क्लोरोफिल. और डबल बॉइलर मेथड क्यों लेते हैं, क्योंकि अल्कोहल is highly flammable. fire. So once the chlorophyll is removed, because why it is important to remove the chlorophyll? It interferes with the iodine test. वो iodine test के साथ interfere करेगा. अब हमें next step में iodine test करना है. What do you mean by iodine test? We're going to drop the iodine solution over the discharged leaf or decolorized leaf. What will you notice? The part of the leaf which was exposed to sunlight turned blue-black, and the part of the leaf which was not exposed to sunlight remains as it is. Because the part of the leaf exposed to sunlight have starch, and the part of the leaf which was not exposed to sunlight does not have starch. Is this clear? क्या ये बात समझ में आ गई? Everybody, all right. This is how you need to. I will be sharing this slide with you all. अभी राइटिंग टाइम नहीं है क्योंकि एक्सपेरिमेंट एक बार में पूरे कर लोगे तो कंप्लीट हो जाएगा, नहीं तो फिर इसकी टर्न आपकी कब आएगी, नेक्स्ट संडे 8 को आएगी. अब देखो नेक्स्ट में हम क्या कर रहे हैं, नेक्स्ट में हम क्या कर रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड चेक कर रहे हैं. पहले वाले एक्सपेरिमेंट में हमने क्या किया था, सनलाइट चेक की थी. अब नेक्स्ट में हम क्या कर रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड. अब कार्बन डाइऑक्साइड चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, व्हाट आर वी गोइंग टू डू, कार्बन डाइऑक्साइड ब्लॉक करनी है. फर्स्ट वाले केस में हमने क्या किया था, सनलाइट ब्लॉक की थी. सनलाइट ब्लॉक करने के लिए हमने क्या किया था, एल्यूमिनियम फॉइल से कवर किया था, राइट. और इसमें हमें कार्बन डाइऑक्साइड ब्लॉक करनी है. तो कार्बन डाइऑक्साइड ब्लॉक करने के लिए क्या किया है, वी हैव टेकन अ जार, राइट, कंटेनिंग अ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन. हमने एक जार लिया है जिसके अंदर कौन सा सॉल्यूशन है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड. पर्पस ये होगा ना कि हमने उसमें उठा के पोटेशियम हाइड्रोक्साइड डाला. अब वो पर्पस क्या है कि कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब कर लेता है. क्योंकि अगर आपने एक रबर कॉक लिया, रबर कॉक में से आपने लीफ इंसर्ट की, मतलब जो लीफ आउटसाइड द जार है विल रिसीव व्हाट, कार्बन डाइऑक्साइड. और जो इनसाइड द जार है थोड़ी बहुत कार्बन डाइऑक्साइड तो जार के अंदर भी होगी. अब वो भी खत्म करनी है. अब उसको खत्म करने के लिए क्या डाला गया, हाइड्रोक्साइड. उसको फिनिश करने के लिए क्या डाला गया, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड. तो जितना भी CO2 यहाँ पे अवेलेबल होगा वो क्या कर लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा और खत्म कर लेगा. मतलब ये वाले पार्ट को क्या नहीं मिल रहा, मतलब ये रॉ मटेरियल ही गायब कर दिया. फोटोसिंथेसिस क्या कर दिया, एक रॉ मटेरियल गायब कर दिया, हमने इसको फिनिश कर दिया. तो वाटर तो होगा क्योंकि लीफ के अंदर वाटर कंटेंट होता है, बट क्या खींच लिया हमने उससे, CO2. अब इसके अंदर स्टार्च होगा,
3 दिन तक हम इसको ऐसे ही रखेंगे। क्या करने के लिए? स्टेप नंबर 1 डी स्टार्चिंग। हम यहाँ पे 3 दिन के लिए रखेंगे तो क्या हो जाएगी? डी स्टार्चिंग। डी स्टार्चिंग के बाद क्या करना जरूरी होता है? डीकलराइजेशन कैसे करोगे? डबल बॉयलर मेथड से वर्क करोगे। तो आपने क्या ले ली? लीफ को आपने बॉईल कर दिया और आपने लीफ कैसी कर दी? मतलब जो नीचे वाला पार्ट है जो इस जार के अंदर है उसमें फोटोसिंथेसिस नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है। तो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड नहीं थी। तो अब आप थर्ड स्टेप में क्या करोगे? टेस्ट। यहाँ पे हमने क्या किया? डीकलराइजेशन। और थर्ड स्टेप में हम क्या करते हैं? आयोडीन टेस्ट। ठीक है। आयोडीन टेस्ट में हमने क्या किया? हाइड्रोजन। तो जो पार्ट एक्सपोज्ड था, राइट, आउटसाइड था, जिसको कार्बन डाइऑक्साइड मिल रही थी, उसमें क्या था? स्टार्च प्रेजेंट था। तो इसीलिए वो कैसा टर्न हो गया? ब्लैक। बट जो जार के अंदर है जिसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है, वो उसमें कोई भी स्टार्च प्रेजेंट नहीं है। तो स्टार्च प्रेजेंट नहीं है, विल इट गिव एनी ब्लू ब्लैक कलर? नो, इट विल नॉट गिव एनी ब्लू ब्लैक कलर। इज दिस क्लियर एवरीबॉडी? इजी था। स्टेप तीनों के सेम है। फर्स्ट का भी सेम था, डिस्टार्चिंग। डिस्टार्चिंग के बाद डीकलराइजेशन। डिस्टार्चिंग कैसे करनी है? सनलाइट के केस में कवर कर दो, कार्बन डाइऑक्साइड के केस में जार में रख दो और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड डाल दो, वो सारी की सारी कार्बन डाइऑक्साइड खींच लेगा, खत्म कर देगा। 3 दिन तक इसको रखे रखो तो ये इसमें जो स्टार्च प्रेजेंट था वो भी क्या हो जाएगा? रिमूव हो जाएगा और लीफ कैसी हो जाएगी? डिस्टार्च हो जाएगी। डिस्टार्चिंग के बाद हमें डीकलराइजेशन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। डीकलराइजेशन नहीं करोगे तो आयोडीन टेस्ट प्रॉपरली नहीं होगा, राइट। तो आयोडीन टेस्ट में हमने क्या देखा कि जिसको कार्बन डाइऑक्साइड नहीं मिली, जिस पार्ट ऑफ द लीफ को, उसमें फोटोसिंथेसिस नहीं हुआ, और जिस पार्ट को मिल गई उसमें फोटोसिंथेसिस हो गया। मतलब उसमें स्टार्च था तो इट टर्न्स ब्लू ब्लैक, इसमें स्टार्च नहीं है तो इट डज नॉट टर्न ब्लू ब्लैक। जा रहा है दिमाग में? मेरे को जैसे मैं समझा रही हूँ मुझे नेक्स्ट क्लास में ऐसा रिस्पॉन्स दे दोगे? इसमें से लेंथी क्वेश्चन आएगा तो 3 मार्कर आएगा, वो बोलेगा एक्सपेरिमेंट लिख के बताओ, तो ये लिख देना। 1 सेकेंड। क्लोरोफिल का था ना हमारा? नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड का था। अच्छा, मैं दीदी को बोलूंगी, शायद इसमें से वो चला गया। 17 स्लाइड हमारी मिस थी ना? हाँ, तो दीदी विल पुट इट इन द बोर्ड एंड देन शी विल शेयर यू। आपको इस तरह से लिखना है एक्सपेरिमेंट। आई विल शो यू विद दिस। You have to write the procedure, you have to write the observation, and then you have to write the conclusion. अब हमारा एक थर्ड एक्सपेरिमेंट रह गया, वो क्या रह गया? लास्ट पढ़ लेंगे हम। सिद्धार्थ अज्ञान। मुझे नहीं लगता आप लोगों को थकना चाहिए, क्योंकि 3 घंटे से तुम लोग बैठो, हम खड़ी हैं तुम्हारे लिए। तो यू हैव नो रीजन टू से कि हम थक गए। डू यू हैव एनी रीजन टू से? योर बॉडी इज इन ग्रोथ स्टेज, माय बॉडी इज इन रिपेयर स्टेज। So who must have more energy, me or you? You. And who is showing more energy? I. So that means I am young, you are old. I am young, you are old. So if I see tiredness on any face, I will call you old. ठीक है? Are you ready? चलो, लास्ट एक्सपेरिमेंट हम क्या करेंगे? लास्ट एक्सपेरिमेंट हम करेंगे क्लोरोफिल। अब क्लोरोफिल की प्रेजेंस टेस्ट करने में हम बार बार बोले जा रहे हैं कि फोटोसिंथेसिस करने के लिए क्या चाहिए? क्लोरोफिल चाहिए। अब क्लोरोफिल को हमें क्या करना है? क्लोरोफिल को टेस्ट करने के लिए हमें एक सेपरेट टाइप की लीव्स लेनी होती हैं। ऐसी लीव्स को क्या बोला जाता है? वेरीगेटेड लीव्स। कैसी लीव्स लेनी होती है? वेरीगेटेड लीव्स। वेरीगेटेड लीव्स कौन सी होती है? विच आर पार्टली ग्रीन। कैसी लीव्स होती है? पार्टली ग्रीन एंड पार्टली व्हाइट। आपने ऐसी लीव्स देखी है? तो ऐसी लीव्स को क्या बोला जाता है? वेरीगेटेड लीव्स। वेरीगेटेड लीव्स कौन सी होती है? थोड़ी सी ग्रीन होती है और थोड़ी सी व्हाइट होती है। मतलब ग्रीन पार्ट के पास क्लोरोफिल होगा और व्हाइट पार्ट के पास क्लोरोफिल नहीं होगा। सिंपल। इसका फर्स्ट स्टेप हमारा क्या हो जाएगा? रिमूव हो जाएगा। क्यों? क्योंकि डिस्टार्चिंग करने की नीड ही नहीं पड़ी। जो व्हाइट पार्ट है लीव का, वो तो फोटोसिंथेसिस करना नहीं चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? क्लोरोफिल नहीं है। उस पार्ट के लिए सनलाइट मॉलिक्यूल्स, लाइट एनर्जी के मॉलिक्यूल्स ट्रैप नहीं हो सकते। जब लाइट एनर्जी ट्रैप नहीं हुई तो वाटर मॉलिक्यूल स्प्लिट नहीं होगा। वाटर मॉलिक्यूल स्प्लिट नहीं होगा तो हाइड्रोजन नहीं मिलेगा। हाइड्रोजन नहीं मिलेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन नहीं होगा। सब कुछ मिक्स है।
सब कुछ इंटरलिंक्ड है, ठीक है। तो आपने वेरीगेटेड लीव्स ली, इसके मैं आपको एग्जांपल बता दूं, द एग्जांपल्स आर क्रॉटन एंड काउलिस। देयर आर टू प्लांट्स जिनकी लीव्स कैसी होती है, वेरीगेटेड लीव्स, ठीक है। अब वो आपको एग्जांपल देके, ये दो एग्जांपल्स आपको याद होने चाहिए, वो आपको एग्जांपल देके पूछ सकता है। तो क्लोरोफिल को टेस्ट करने के लिए आपको कौन सी लीव्स लेनी है, वेरीगेटेड। वेरीगेटेड लीव्स कैसी होती है, आधी ग्रीन होती है आधी व्हाइट होती है। ग्रीन पार्ट के पास क्लोरोफिल है, व्हाइट पार्ट के पास क्लोरोफिल नहीं है, मतलब ग्रीन पार्ट के पास स्टार्च होगा और व्हाइट पार्ट के पास स्टार्च नहीं होगा, यही होना चाहिए। तो हमारे डिस्टार्चिंग वाला तो खत्म हो गया, क्योंकि ऑलरेडी इसका एक पार्ट डिस्टार्च है, क्योंकि उसमें क्लोरोफिल नहीं है। सेकेंड स्टेप क्या था, डीकलराइजेशन, इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो सेंटर वाला पार्ट है उसमें ग्रीन कलर क्लोरोफिल है, तो उसको डीकलराइज कर दोगे बाय डबल बॉयलर मेथड, बाय बॉइलिंग इट इन अल्कोहल। अब ये पूरी की पूरी लीफ कैसी हो गई, सो सॉरी, ये पूरी की पूरी लीफ कैसी हो गई, डीकलराइज हो गई, डीकलराइज हो गई। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, आयोडीन टेस्ट। आयोडीन टेस्ट में आप ड्रॉप करके देख रहे हो, जो ग्रीन पार्ट था उसमें क्या हो गया, ब्लू ब्लैक, वो क्या इंडिकेट कर रहा था, फोटोसिंथेसिस हुई होगी, फोटोसिंथेसिस होने से स्टार्च बना होगा। और जो आपका व्हाइट पार्ट था उसमें क्या हुआ, no photosynthesis, no photosynthesis, no starch formation, no starch formation, so it does not turn blue. Understood? अंडरस्टूड। एल्यूमिनियम फॉयल में हमने सॉरी सनलाइट के लिए हमने डीकलराइजेशन और डिस्टार्चिंग कैसे की थी, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड के लिए हमने क्या किया था, KOH सॉल्यूशन में पुट कर दिया था। और थर्ड में हम क्या कर रहे हैं, डिस्टार्चिंग करने की नीड नहीं पड़ रही, क्योंकि लीव्स कैसी हैं, वेरीगेटेड। आगे क्लियर। आज हमने बहुत सारा कंप्लीट किया, 2 संडे की क्लासेस हमने आज ही कंप्लीट। तो आप समझ रहे हो ये टॉपिक, अभी हमारा न्यूट्रिशन इन प्लांट्स स्टिल पेंडिंग, अभी हम न्यूट्रिशन इन प्लांट्स खत्म नहीं कर पाए। तो आप अभी ये चैप्टर में ऐसे ही आपको याद है, मैं बोलती थी ये चैप्टर 2.5 महीने तक चलता है, डू यू रिमेम्बर, ये वजह, क्योंकि डिटेल बहुत सारी है बट इंटरेस्टिंग। आर यू फाइंडिंग इट इंटरेस्टिंग देन योर 9th grade? Yes, ma'am. Yes, because it has logic. Less of learning, more of logic. We have to learn about stomatal pores. We have to learn its function. या upload नहीं हो रहा है. We'll be learning about the mechanism of transport of water and minerals through the plants. अभी नेक्स्ट संडे पे जाके हमारा न्यूट्रिशन इन प्लांट्स खत्म होगा, उससे नेक्स्ट संडे पे हम पहुंचेंगे किस पर, न्यूट्रिशन इन एनिमल्स, ठीक है।